आवाज आ रही है? जी हेलो, नमस्कार। आ रही है। नमस्कार। ठीक ठीक है। जी आ तो रही है, आ रही हाँ, है। ठीक है ठीक है। माय टॉपिक इज री-इमर्जेंस ऑफ ट्रेडिशनल सिनेरियो इन विलेज कॉन्टेक्स्ट। तो स्पेशली माय सीन इज फोकस ऑन इंडियन विलेज. आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडियन माइग्रेशन, द सिचुएशन क्रिएटेड. In this aspect, we have to see the four things. One thing is the social relationship. Social relationship in the community, in family, as well as in the whole. I mean the personal to family, personal to community, or you can say the dimensions of social life. Second point is the changing attitude of the people. I mean, there is two things: the behavior of society, one part; the behavior of family is another part; the behavior of community is another part; and the person itself. So the second point is changing attitude towards uh, uh, the changing attitude of the peoples towards the social institution, what they are talking about the social institution and how institution are going to behave. It is a very small thing. It's very typical for me being a student of sociology. There is a question. We are talking with individual. I mean, I'm talking with my father. I'm talking with my mother. I'm talking with my wife, my kids. The question is, ever I'm talking with my family. जब हम भारतीय समाज को देखते हैं तो एक छोटा सा प्रश्न खड़ा होता है कि हम अपने पिता से बात करते हैं, पुत्री से बात करते हैं, माता से बात भी, मैंने अपने परिवार से बात की। सभी का यही प्रश्न उठता है कि हम अपने परिवार के लोगों से तो बात करते हैं, क्या हम कभी अपने समुदाय के लोगों से बात करते हैं? Or a person is going to talk with family, same thing he is or she is talking with the community. He can understand the language of community. So my second point is changing attitude of people towards social institutions. The third point I'm going to discuss the cultural aspects of human life. One thing is the human life, another thing is social life, another is the personal life. I am a social being, I am an individual human being, and the thing is the cultural aspect. Cultural, there is in connectivity, and culture is not only the connectivity either in one language, either it is in Hindi, either it is in English, either it is in Bhojpuri, either it is Tamil, either it is Chinese, either it is Japanese. It's not the thing. This is the language for communication, but my body language, my family language, my social language, my the connection, I'm not going to talk anything. Whole my body, whole posture will appear. So the important thing is cultural aspects of human life. My fourth point is life and livelihood. Life is one thing and life is another thing. So life and livelihood, this will be my the fourth point. I'm coming to my social relationship point. When I'm going to talk on social relationship, there are 3 points. One thing is the cognitive dimensions. Cognitive dimensions means जिसको आप कहते हो संज्ञानात्मक, आपको किसी चीज की जानकारी है, कितनी है, कैसे आप बात करते हो, जिसको आप कहते हो सोशियोजेनरिस की आपको एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, the infrastructure of the shared identity and the seed of human culture. We are talking, I was listening Dr. Sonal and all my seniors, those who are previously speakers, they are talking, yes, of course. The thing, being a student of sociology, my problem is how we can connect it, I mean, with the behavior, the position, just the gesture, and sometimes it is directly attending the object. The second point, when I'm talking about the cognitive dimensions, the second point is motivational dimensions. And when I'm going to talk on motivational dimensions, I have 2-3 points.
One thing is the natural habit. What is the natural habit? What we are expecting? Suppose that in a point of view or psychology, I want to give a small example. A small example. Can I fill a glass with a jug? I have a full jug of water, full water. Can I fill the glass? No, it's not possible. The capacity of jug is higher than the glass. The capacity of the bucket is bigger than the jug, and it is very bigger than the glass. The capacity of the tank is bigger than the bucket. Same thing going with the mental level. Mental, the people, the behavior, the culture, the family. When I am going to talk with you, are you think I am talking with you? No. When I am going to use a single word, a single behavior, a single talk, my family, my society, my schooling, my institutions, all are speaking behind me. What Cohen is saying, paradigm shift. So the natural habit of a person, understanding the point and object choose task. We have lot of potentials. We have lot of labors. We have lot of things. But are we going to use it proper way? So motivational dimensions is natural habit, understanding the point, object choice, and interactional action. When I am going to talk with interact a person, which type of person I'm going to talk? So one thing, suppose that I am talking in chemistry, so there is a language of chemistry. I am talking in mathematics, there is a language of mathematics. I am talking in physics, there is a language of physics. There is a language in Chinese. But in society, when we are going to talk, the interaction, the body language, and how we are using the people, how they are answering to me, what is their behavior, because they are coming from different paradigms, the family structure, the community structure, and all the things. After that, the environmental information, which type of information they have. And the last point is the communicative intention, what their intention, where they are going. Suppose that people are talking something, but they want the result something different. I want to say something to you, but in direct way. So we have to understand the motivational dimensions of the society. After that, the third point is cultural dimension. When I am going to talk cultural dimension, the cumulative culture evolution. Cumulative culture. A person is traveling from a part like India. Just I want to give you an example. A person is start to travel from Calcutta. A Bengali is coming from Calcutta to serve in Bihar, either in UP, either in Maharashtra, either in Punjab. So in 2, 3, 4, 5, 10 years, he will change the behavior, because now he is adopted. Now he is going to adopt. Now he is going to accommodate with Punjabi culture. So his language is going to change. But inside the behind, the culture is from Bengal. Suppose that a person belongs from Bihar or from UP. He is groomed with a culture of, with eating habit, with talking habit, with listening habit, with song habit, and with nature. He is used to with own culture. But he is going to work in Bombay or in Punjab, either in Dubai, either in America. Maybe he don't know. ये संभव है कि कोई आदमी अपने विषय को नहीं जानता हो. एक व्यक्ति जो अपनी जगह पे रहता है, अपनी भाषा को जानता है, अपने लोगों से बात करता है. और जैसा कि मैंने कहा कि एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, अगर हम उत्तर भारत से किसी को लेकर के पंजाब में या बॉम्बे में जाते हैं, तो वहां एक कल्चरल प्रॉब्लम खड़ी होती है, कल्चरल क्राइसिस खत्म हो जाती है. वो आदमी जब 5 से 10 साल वहां रहता है, और वहां से जब वो अपने गांव की तरफ लौटता है, when he come back to countryside, it will be very problematic to adjust. A person is coming from rural background. He worked 20 years, 30 years, he devote all his education in urban area, either in a different place, either in different culture. How he can come back and adjust? How he can come back and adjust?
So the cultural evolution, cumulative cultural evolution, we have to change. The second point is cultural transformation, cultural transmissions or cultural transformation. संस्कृति का प्रभाव इतना जबरदस्त होता है कि मेरे बैठने, बोलने, खाने, हर चीज में झलकता है। वो मेरे शब्दों में भी झलकेगा, मेरी वाणी में भी झलकेगा। हम किसी भी भाषा को, जैसे पंजाब में हम हिंदी बोलते हैं, बिहार में हम हिंदी बोलते हैं, यूपी में हम हिंदी बोलते हैं, महाराष्ट्र में हम हिंदी, लेकिन इनके टोन जो होते हैं, इनके टोन, इनकी जो साउंड, उनकी जो पिच होती है, जिनका वाइब्रेशन होता है, वो डिफरेंट होता है। फिर हम कहते हैं कि ही बिलोंग्स फ्रॉम दैट प्लेस। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आ जाती है कि जिस लेबर को, जिस कम्युनिटी को हमने अपने से आइसोलेट कर रखा था, या जो हमको छोड़ करके जा चुका था, अब वो फिर से कैसे एडजस्ट करेगा। मेरा अगला पॉइंट आता है फिर इसी में कि कोऑपरेटिव इंटरेक्शन उनका कैसा है। उनका कोऑपरेटिव इंटरेक्शन से मेरा मतलब ये है कि जब वो लौट के अपने घर को आएगा, जब वो माइग्रेट होकर के आएगा, जब वो अर्बन एरिया से, जब वो इंडस्ट्रियल एरिया से, व्हेन ए पर्सन, व्हेन ए लेबर, व्हेन ए मैनेजर, व्हेन ए साइंटिस्ट विल कम बैक फ्रॉम हिज ओन एनवायरनमेंट टू द विलेज साइड, टू द कंट्री साइड, it will be very problematic, because as previously I given to you, it's a matter of mental level. एक वैज्ञानिक जो कि अपनी प्रयोगशाला में 20 वर्ष लगा चुका है, वह गांव में आकर के गांव के लोगों के साथ एडजस्ट करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। एक लेबर जो कि बॉम्बे में, पंजाब में रहती है, जो 10 साल वहां काम करती है, वो गांव में जब आएगी तो उसका टोन बदल चुका होगा और लोगों का इंटरेक्शन करने का तरीका भी बदल चुका होगा। तो कोऑपरेटिव मैनर में जो कल्चरल डायमेंशन है उसको भी हमको मेजर करना पड़ेगा। इसके बाद जब हम देखते हैं कि हम कोलैबोरेट कैसे करते हैं, तो करने का तरीका, पंजाब में काम करने का तरीका, बॉम्बे में काम करने का तरीका, दुबई में काम करने का तरीका, अमेरिका में काम करने का तरीका, इट्स डिफरेंट, टोटली डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। सपोज दैट यू हैव एन हाउस बॉय, जिसको आप कहते हैं कि घर में हमने नौकर रखा हुआ है। अगर आप अपने गांव से एक नौकर को उठा करके अमेरिका ले जाते हैं, यू आर गोइंग टू टेक जस्ट वन लेबर फ्रॉम विलेज कंट्री साइड, इज इलिटरेट, उसको भाषा का कोई ज्ञान नहीं है, उसको संख्या का कोई ज्ञान नहीं है, उसको अक्षर का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन अब वो अमेरिका चला गया है। अमेरिका में मार्केट में वो जाता है, बाहर जाता है, और जो शब्द वो सुनता है उसको ग्रहण कर लेता है। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरी मदर इलिटरेट थी, लेकिन अगर कोई फोन करता था तो कहती थी जस्ट वेट 1 मिनट। ही डोंट नो द मीनिंग ऑफ जस्ट वेट 1 मिनट, बट शी वाज यूज्ड टू। टीवी सिंह भाई साहब हंस रहे हैं, मेरी माता जी को बहुत इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन वो अंग्रेजी के शब्दों का इतना धड़ल्ले से प्रयोग करती थी कि जैसे वो पूरी बात समझ रही हैं। ओके ओके आई एम कमिंग, वो नहीं जानती हैं, उनको मालूम ही नहीं कि कमिंग का मतलब क्या होता है, लेकिन वो यूज करती थी ओके ओके आई एम कमिंग, जस्ट होल्ड। अब आप फोन करेंगी तो वो उठा कहेंगे जस्ट होल्ड, वो नहीं जानती। तो ये एक जो तीनों डायमेंशन है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन मुझे ऐसा लगता है। अब जो मेरा दूसरा मुख्य बिंदु था, जो सेकंड मेरा पॉइंट है कि चेंजिंग एटीट्यूड ऑफ द पीपल टुवर्ड्स सोशल इंस्टीट्यूशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पता नहीं क्या हो गया है, ये बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम एंड इट इज वेरी आई मीन stressful for me. I have no any word to express my emotion and sentiment. People don't know, but they are talking. Just 30 seconds for deviation. There are people talking on religion, but they don't know religion. There are people talking on caste, they don't know caste. People are talking about the house structures, they are not engineer. You can find out near about your surrounding people, 20 of people. If you say I have problem in my heart, 20 people will give you a instruction just like in the doctor. टीवी सिंह भाई साहब, बिल्कुल मैं आराम से बात कहता हूं कि हमारे पास ऐसे लोग हैं जो हमारे इंस्टीट्यूशंस की वैल्यूज को नहीं जानते हैं। एक आदमी खड़ा हो, डॉक्टर ने गलत दवा दे दी, तुम्हें कैसे पता भाई? वो पुल गिर गया, इंजीनियर की गड़बड़ी थी। आर यू इंजीनियर? तो हम लोग इंटरफियर करते हैं। आदमी धर्म के बारे में नहीं जानता है और धर्म के बारे में बोलता है। एक आदमी जिसको जाति की परिभाषा नहीं पता, वो जाति के बारे में बोल रहा है। तो बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजिस्ट, और यू कैन से साइकोलॉजिस्ट, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजिस्ट, इट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी
कि हम कैसे इसको कम्युनिकेट करते हैं। चेंजिंग एटीट्यूड ऑफ पीपल टुवर्ड्स द सोशल इंस्टीट्यूशन, वन थिंग इज इंस्टीट्यूशन अफेक्ट द एटीट्यूड एंड बिहेवियर। यस, इंस्टीट्यूशन अफेक्ट, यस, मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन, फैमिली इज एन इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इज एन इंस्टीट्यूशन। विवाह के बाद आदमी के सोचने का नजरिया बदल जाता है, फैमिली लाइफ के बाद आदमी की थिंकिंग कैपेसिटी बदल जाती है। आप देखिएगा कि एक विश्वविद्यालय से एक ही बच्चे की स्कूलिंग आप कराओ, आप स्कूलिंग कराओ, कॉन्वेंट में कराओ, एक प्राइमरी स्कूल में कराओ, गवर्नमेंट स्कूल में कराओ, देखो उसके सिचुएशन में फर्क आ जाता है। हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ने के बाद एक अलग व्यवहार आता है, लखनऊ से पढ़ने के बाद एक अलग व्यवहार आएगा। आप ओहायो से पढ़ लो, आप अफ्रीका में पढ़ लो, आप नाटाल यूनिवर्सिटी से पढ़ लो, आप जो एक कल्चरेशन होता है, जो कल्चर आपको मिलता है, वो एक इंस्टीट्यूशन, जिसको हम समाजशास्त्र की भाषा में इंस्टीट्यूशन कहते हैं। तो चेंजिंग एटीट्यूड्स ऑफ पीपल टुवर्ड्स सोशल इंस्टीट्यूशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसमें मैं पहली बात ये कहना चाहता था कि इंस्टीट्यूशन अफेक्ट द एटीट्यूड एंड बिहेवियर। एटीट्यूड टू बी लार्जली गिव एंड डिटरमाइंड बाय स्ट्रक्चरल कंट्रोल। स्ट्रक्चरल भाषण, वो स्ट्रक्चर, बेटा कैसे बैठना है, क्या बोलना है, किससे बोलना है, गुरुजी से कैसे बात करनी है, बड़े भाई से कैसे बात करनी है, सीनियर से कैसे बात करनी है। फॉर एग्जाम्पल, in Varanasi, I just passed from Banaras in the university, and there is a culture in Banaras. We are saying all our seniors bhaiya, bhaiya, and a person is 10 years senior, we are going to touch the feet. हम पैर छूते थे, भैया प्रणाम। हम लोग सोशियोलॉजी में पढ़ते थे और आईटी के प्रोफेसर्स को भी हम गुरुजी प्रणाम कहते थे। एजुकेशन डिपार्टमेंट जो कभी बीच में था ही नहीं, वो कैंपस के बाहर था, वहां भी हम कहते थे गुरुजी प्रणाम। So it is a big thing that is structural control, is structural centered. Second point is political behavior. A particular sects of institutions change the information. Particular sects. आप देख लो इस समय जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, कोई आदमी एक पार्टी विशेष को लेकर के बोल रहा है, कोई आदमी भी, तो ये हम खुल के डिस्कशन करने के मूड में नहीं आ पाते हैं, या यू कैन से वी कैन नॉट मेक एन ओपन डिस्कशन बिकॉज पॉलिटिकल बिहेवियर, ए पर्टिकुलर सेक्ट्स इंस्टीट्यूशन चेंज and in front class attitude related behaviors, they are going to change, they are going to motivate. My second point is the knowledge about the drives, the forces who are drives us. वो कौन सी ताकतें हैं जो हमको चला रही हैं। तो इसमें हमको देखना पड़ेगा कि जो मुझे चला रही है, अब हम कहीं और है, मेरा पावर कहीं और है, मैं बोलता कहीं और से हूँ, प्रेशर कहीं और से है, ये हमको देखना पड़ेगा। डिसीजन कहाँ हो रहा है? वाराणसी में। फैसला कहाँ हो रहा है? दिल्ली में। आप बनारस में क्या होगा, इसका फैसला दिल्ली से हो रहा है। कहाँ क्या होना है, इसका फैसला, पावर कहीं और है। आपको सब काम करना है, फाइनेंस कोई और कर रहा है तो पावर उसकी चल रही है। आप स्कूल कॉलेजेस में भी ऐसा चल रहा है, वो अपने रिलीजियस वैल्यूज को, अपनी पर्सनल वैल्यूज को, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि जैसे आज एक हॉट डिस्कशन होता है कि गोडसे ने गांधी को गोली मार दी। गांधी सही थे, एक पक्ष कहता है गोडसे गलत थे। क्या सही है क्या गलत है, दिस इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर, दिस इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन। हम पहले किसी आदमी को पूरे सिनेरियो को पढ़ाएं, उस समय की सिनेरियो क्या थी, उस समय की पॉलिटिकल कंडीशंस क्या थी, गांधी ने क्या क्या किए थे, गांधी के क्रॉनिकल ऑर्डर में क्या क्या हुआ, गांधी ने कब कब चेंजेस किए, गांधी ने अपनी वॉइस को कब कब चेंज किया, उसके पीछे क्या क्या पैराडाइम्स थे। फिर हम गोडसे को देखेंगे। नाउ इट्स योर टाइम, यू हैव टू डिसाइड। मेरा ये पॉइंट कहना था कि जो नॉलेज है हमारा, उसको जो ड्राइव्स होती है, जो अदर फोर्सेस होती है, वो कहीं बाहर से होती है। तो अभी जैसे मैं बात करूंगा कि हमारे यहाँ जो माइग्रेशन हो रहा है, मतलब कि कोविड-19 के बाद जो मेन इश्यू है जिससे हमारा सेमिनार हो रहा है, कि कोविड-19 के बाद जब ये लौट करके आएंगे मजदूर, या हम विलेज को जब हम रीस्ट्रक्चर करेंगे तो कैसे करेंगे। जैसा कि अभी सोनल मैडम ने भी कहा कि वी द सोशल साइंटिस्ट हैव मोर रिस्पॉन्सिबल, it's a high time to work with togetherness. So changing attitude, the second point is we becoming more environmental, otherwise we can't survive. हम अगर प्रकृति के पास नहीं जाते हैं या प्रकृति का समन्वय नहीं बना पाते हैं तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे।
हमको गांव को देखना पड़ेगा, हमको इंस्टीट्यूशंस को देखना पड़ेगा, हमको कम्युनिटी को देखना पड़ेगा। रिफ्लेक्शन ऑन ट्रेंड्स एंड एनवायरनमेंट, इट्स सब पॉइंट। जब हम लौटेंगे एनवायरनमेंट की तरफ तो हमको देखना पड़ेगा कि एनवायरनमेंट हमको कैसा रिफ्लेक्ट कर रहा है। Yes, we are coming back to village, we are coming back to family, we are coming to how family is going to respond. So how environment is going to inform us. जैसा कि सोनल मैडम I think she is from Kanpur, so she can understand Hindi. कि एक आदमी जैसे जब वो लौट के जाएगा तो उसकी फैमिली कैसे रिस्पॉन्स करती है, इसी तरह से जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं कि चेंजिंग एटीट्यूड है, तो एनवायरनमेंट मेरे साथ कैसे बिहेव करेगा। फिर आएगा कि जो जब एनवायरनमेंट हमको बिहेव करेगा या रिफ्लेक्ट करेगा तो उसमें जो इवोल्यूशन वैल्यूज हैं, जो टेस्ट्स हैं उसके, या जो पर्सनालिटीज है वो कैसे इन्फ्लुएंस करती है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो इंस्टीट्यूशन हमसे इफेक्ट हो रहे हैं, हाउ दे इंटरैक्ट विद, परिवार की हमसे कुछ उम्मीदें हैं, समाज की हमसे कुछ उम्मीदें हैं, गांव के लोगों की हमसे कुछ उम्मीदें हैं, वो हमसे क्या चाह रहे हैं और हम उनसे क्या चाह रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा इशू बनेगा। और हमें लगता है कि इसको हमको हम सोशियोलॉजिस्ट को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा इशू खड़ा होगा गांव में, जो गांव का स्ट्रक्चर है। मैं इस पॉइंट पे आऊंगा। और जो मेरा अगला पॉइंट है कि जो बोगे वो काटोगे, गेट व्हाट वी पे फॉर, जो हम देते हैं उसको हमको मिलता है। तो जो हमारा लिविंग लॉ है, जो स्ट्रक्चर है, हमारी जो सोसाइटी है, कम्युनिटी है, जो हमारी लिविंग बॉडीज है, जो हमारी फैमिली है, जो हमारे स्कूल्स है, वो कैसा बिहेव कर, वो कैसा बिहेव, ये एक बड़ा इशू बनेगा हमारे पास। अब हम देखते हैं कि कल्चरल एस्पेक्ट में जब हम ह्यूमन लाइफ की बात करेंगे, जब हम पर्सनल एटीट्यूड की बात करेंगे, जब हम लिविंग बीइंग की बात करेंगे, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास आइडियाज आते कहां से। अब हम इंडियन गांव की तरफ थोड़ा सा चलते हैं, थोड़ा सा लिटिल बिट वी हैव टू शिफ्ट इन इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर स्पेसिफिक, द फर्स्ट पॉइंट इज आइडिया फ्रॉम इंस्टीट्यूशन, सेक्रीफाई एंड हाई कल्चर। सेक्रीफाई, जो हमने सबसे ज्यादा किया है वो सेक्रीफाई किया है। हम अपने परिवार के लिए सेक्रीफाई करते हैं, भाई भाई के लिए सेक्रीफाई करता है, हम नेचर के लिए सेक्रीफाई करते हैं, हम पीपल की पूजा करते हैं, बरगद की पूजा करते हैं, गांव के तालाब को गंदा नहीं होने देते हैं, सड़कों को साफ रखते हैं, सामाजिक जिम्मेदारी होती है, सोशल बॉन्डिंग होती है हमारे पास। हम परिवार के बाहर गलत काम नहीं कर सकते हैं, इमोरल वैल्यूज को नहीं कर सकते हैं, हम हमारी एक आइडेंटिटी होती है, हम गांव में घुस नहीं सकते हैं, गांव के लोग हमको पहचानते हैं। तो उस सोशल बॉन्डिंग को, जो सेक्रीफाई हम कहते हैं कि रिस्पेक्ट टू द अदर, रिस्पेक्ट द इंस्टीट्यूशन, हम शायद रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, हम अपने स्कूल की, अपने इंस्टीट्यूशन की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। अगर आप हम सोशल थॉट की तरफ जाते हैं तो हम ये पाते हैं कि जब भी हम किसी स्कूल को, आई मीन सोशल थॉट, when we are going to make an social thought, when we are going to build an school, when we are going to make an institution, जब हम किसी राष्ट्र का, किसी समाज का, किसी परिवार का, किसी थॉट की, विचार का जब हम एक खड़ा करते हैं, स्कूल खड़ा करते हैं, तो उसके लिए हमको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो हमारे एंसेस्टर्स होने चाहिए, हमारे फॉलोअर्स होने चाहिए, जो हमको समझते हों, जो हमारी बात को मानते हों। दूसरा चीज, लीडरशिप शुड नॉट बी चैलेंज्ड, लीडरशिप शुड नॉट बी चैलेंज्ड। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, एक कुम्हार का। 25 साल का एक कुम्हार शादी होने के बाद अपने 5 साल के बच्चे को ले जाता है, मिट्टी की परख करता है, ले आता है, अपने पिता से उसने सीखा है दिया बनाना, कुल्हड़ बनाना, पुरवा बनाना, सुराही बनाना, ये उसका बच्चा खेल खेल में सीख रहा है, लेकिन वो अपने पिता से मार्केटिंग भी सीख रहा है। तो 3 जनरेशन इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, 3 जनरेशन इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। अब चौथी जनरेशन, जो उसका दादा बैठा हुआ है, जो उसको बिजनेस स्किल सिखा रहा है कि बेटा पिछली बार दीपावली में दिए कम पड़ गए थे, इस बार 10,000 ज्यादा बनाना, जिसको हम स्किल्ड लेबर कहते हैं, जिसको हम परिमार्जित में स्किल्ड लेबर कहते हैं, जिसको हम वोकेशनल एजुकेशन कहते हैं। हम आप कुछ जो हमारा आश्रम था, जिसमें हमारे दैनिक जीवन के, आर्थिक जीवन के, सामाजिक जीवन के ताने बाने को हमको देखना पड़ेगा। अब सेल्फ सेक्रीफाइंग की जब हम बात करते हैं तो मॉरल वैल्यू की सिचुएशन की बात करते हैं, और इट्स सिर्फ मॉडर्न इंडस्ट्रियल लाइफ की हम बात करते हैं, हम सेक्रीफाई करते हैं। अब हम इंडस्ट्रियल बेल्ट में काम करते करते ऑलमोस्ट मैकेनिक हो जाते हैं, हम मशीन की तरह काम करने लगते हैं, हमको लगता है कि मैं पैसा दे दूंगा और ये काम हो जाएगा।
तो ह्यूमन वैल्यू का डिवैल्यूएशन होने लगता है, ह्यूमन वैल्यूज का डिवैल्यूएशन होता है। तो अब मैं चार चीजों को कहना चाहूंगा आपसे कि when we are going to look the village, is it village community or village society as village structure, we have to see the four things. The plan, social plan for the village. What is the plan? Second point is, what is the design? Third point is, what is structure? And fourth point is, what is function? So plan, design, structure and function. अब जब हम गांव की तरफ चल रहे हैं तो गांव में हमको देखना पड़ेगा कि विलेज कम्युनिटी की जो कुछ खास विशेषताएं होती हैं। पहली चीज ये है कि रिलेटिवली वो सेल्फ सफिशिएंट, वो जिस दायरे में रहते हैं। अगर कोरोना की मुझे जो बात समझ में आती है कि शायद अगर हम कम्युन सिस्टम में रहे होते, कम्युनिटी जैसे कि 40-50 साल पहले अगर हम चले जाएं, बैक जाएं, तो 4-5 गांव आपस में इंडिपेंडेंट थे, उनका काम आपस में चल जाता था, तो अदर सोसाइटी से मिंकलिंग नहीं करते थे। अगर ऐसा होता तो शायद कोरोना इतना स्प्रेड नहीं हुआ होता, सेकेंड, जब हम कहेंगे कि माइक्रोकॉस्मोस ऑफ कास्ट सोसाइटी, तो कास्ट की अपनी कुछ मॉडरेशन होती है। ऐसा अगर होता तब जो हायरार्की ऑफ सेटलमेंट पैटर्न है, हायरार्की ऑफ सेटलमेंट पॉइंट, इसको भी हम इग्नोर किए। ये हमारे विलेज का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। फोर्थ पॉइंट है जजमानी सिस्टम। कोरोना के बाद जो कैसे ब्रेक करेंगे, अगर हमारा कम्युनल सिस्टम होता तो जजमानी सिस्टम में साल भर का पूरा राशन चलता है। एक आपके यहाँ जो बार्बर आता है, जो नाऊ आता है, जो आपका काम करता है, आप उसके पूरे घर की केयर करते हो। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मेरे गांव में जो बार्बर मेरे यहाँ काम करता था, वो हमारे यहाँ काम नहीं करता था, उसका बेटा भी काम करता था, उसकी बहू भी काम करती थी, उसकी बेटी भी काम करती थी, और उसके पूरे घर का केयर हमारा घर करता था। मतलब 4 फैमिली 5 फैमिली का वो काम करता था। It seems that we have lost connection somewhere. There is a bandwidth issue, I guess. With this in, Hello. We can hear you, sir. You can continue. Please continue, sir. Hello. Please continue. Hello. Are you listening me? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है सर। आप कंटिन्यू करें। This is also a new normal, I guess. The informatics and interventions in destructive space is also a new normal. Anyway, I guess Dr. Sanat Kumar is not audible to us at this stage. So sir, can you hear me? हेलो सर, आप अपना वक्तव्य आगे बढ़ाएं सर, सुन पा रहे हैं हम आपको। हेलो, आर यू गेटिंग मी? हाँ, आवाज आ रही? जी आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। ठीक है। हाँ, बस मेरा लास्ट पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूँ कि लाइफ एंड लाइवलीहुड, तो लाइफ एंड लाइवलीहुड को अगर हम देखते हैं तो हमारे पास देखना पड़ेगा कि 85% ऑफ इंडियन फार्मर्स, 85% हमारे यहाँ जो इंडियन फार्मर्स हैं वो स्मॉल या माइग्रेंट हैं, बहुत छोटा है उनके पास अमाउंट होता है। फिर आप देखेंगे कि अभी जो समस्या कोविड के बाद खड़ी हुई है कि हमारे पास रबी की फसल खड़ी थी और हमारे पास लेबर नहीं थी। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन हो गया। रबी की फसल बिल्कुल 21 मार्च 24 मार्च के आसपास, मुझे याद है इट वाज 25 मार्च को जब टोटल लॉकडाउन हुआ,
तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में जब हमारे पास रबी की फसल कटिंग क्रॉप हम लेने को तैयार थे, हमारे पास लेबर नहीं थी। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा हमको, उस फसल में हमको देरी हुई। अभी क्या है कि फिर जब हम खरीफ की फसल की तरफ बढ़ेंगे तो फिर हमारे पास लेबर नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज की प्रॉब्लम है हमारे पास। इसके बाद जब हम लाइवलीहुड की बात करेंगे तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास ऐसे गांव में बहुत सारे फार्मर हैं, देयर आर लॉट ऑफ फार्मर्स, they have second options. I mean, they have cow and cow dung, cow milk. They're using bio and other things. There are some farmers, those who are using flowers, vegetation, and other fisheries and all type of things. So we have to think. जब हम COVID-19 के बाद की बात करेंगे तो हमारे पास ये एक बहुत बड़ी समस्या आएगी कि हम उनको रीस्ट्रक्चर कैसे करते हैं। I mean कि जो हम हमारे एग्रीकल्चर लेबर्स हैं उनको हम कैसे करते हैं, हम अपने कैसे करते हैं, हम कैसे पुनर्जीवित पुनर्निर्माण कर सकते हैं। कल्चरल जो हमारे एस्पेक्ट्स हैं उनको खड़ा करना पड़ेगा। एक तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो हमारे लोग, जो हमारे फोक्स थे, उनको अगर हम पुनर्जीवित कर पाए, हम गांव की तरफ लोगों को अट्रैक्ट कर पाए, या हम इंडस्ट्रीज को गांव की तरफ, या हम इंडस्ट्रिस्ट को गांव की तरफ मोटिवेट करें कि वहां से हम कुटीर उद्योगों को पैदा करके एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट होगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। You can ask. Thank you so much, sir. If I can summarize in the shortest possible words of the meat